Once again, hallelujah, praise the Lord. और फिर से सभी को आपको प्रेज द लॉर्ड। Greetings to you in Jesus' name. और आप सभी का स्वागत करते हैं यीशु मसीह के महान नाम से। I believe that you all have enjoyed the praise and worship. मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोगों ने बहुत ही आनंद मनाया होगा स्तुति आराधना का। And this is the time to get into the Word of God. और समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। So let us pray. आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। Father, in Jesus' name we thank you. पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं। Thank you for your grace. We thank you for your mercy. We thank you for the word that's going to come forth धन्यवाद today. करते हैं परमेश्वर आपके अनुग्रह आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं जो वचन आने वाला है। Father, I thank you. पिता धन्यवाद करते Father, हैं। bless those who are sitting, watching faithfully, Father God, your word. Lord, let your word work supernaturally into their lives. और प्रभु जो लोग बैठे हैं विश्वास योग्य रीति से प्रभु आप सभी को आशीषित कीजिए। In Jesus' name we और pray. यीशु मसीह के महान नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। I thank the Lord, physically not present, but in the spirit, I am with you. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें शरीर अपने देह आपके साथ नहीं हो लेकिन आत्मा रीति से आपके साथ हो। I am doing the work of God, serving the God. I am not here, but the word of God is here in front of you. परमेश्वर का काम कर रहा हूँ मैं और मैं साथ में नहीं हूँ लेकिन परमेश्वर का वचन आपके साथ है। Amen. आमेन। So let us quickly get into the word. और आइए हम जल्दी से परमेश्वर के वचन में जाएंगे। As I was reading this word, I was truly blessed by the revelation that the Holy Spirit gave. और जैसे मैं ये वचन को पढ़ रहा था मैंने बहुत ही आशीष पाया जो पवित्र आत्मा ने मुझे प्रकाशन दिया है। Many people, they read the Bible without the revelation of the और word. बहुत सारे लोग बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन बिना प्रकाशन के। If you read the Bible अगर आप बाइबल पढ़ते हो without the revelation of the word, और वचन के बिना प्रकाशन के it will not work out. वो नहीं काम करेगा। Hallelujah. हालेलुया। It will not work वो out. नहीं काम करेगा। Bible has to be read with the revelation of the word of God. बाइबल जो है परमेश्वर के वचन जो है वो पढ़ा जाता है प्रकाशन के साथ। Amen. आमेन। And today we are going to go into the word. और आज हम वचन में जाएंगे। So let us turn to the book of Matthew, और chapter 1. और हम जाएंगे मत्ती की किताब में पहला अध्याय। And we are going to read from verse 18 onwards. और हम 18 वचन से हम पढ़ेंगे। Come on, touch somebody this morning and tell them you are blessed in Jesus' name. और किसी को तो छू कर कहिए आज आप आशीषित हो यीशु मसीह के महान नाम से। Come on, church. I know people are lazy Sunday morning, but this morning is the morning of restoration of the Holy Ghost. कहो किसी से कलीसिया मैं जानता हूँ कि ये इतवार का सुबह है और सब लोग जो बहुत ही आलसी है लेकिन आप किसी को छू कर कहिए कि परमेश्वर के वचन से आशीष पाओ। You can enjoy your superb non-vegetarian meal after the church when you go home, but this is the time that you feed your spirit. और आप घर जाके जो है अपना भोजन को आनंदित ले सकते हो लेकिन अभी समय है कि आप अपने आत्मा को परमेश्वर के वचन के साथ आप उनको आत्मा से भरिए। Amen. Amen. This is the time to feed your spirit. और ये समय है कि आप अपनी आत्मा को आप भोजन दें। This is the time to grow in the revelation of the word. और समय है कि आप परमेश्वर के वचन में प्रकाशन में बढ़े। I want to give you a prophetic word this morning. मैं आपको एक भविष्यवाणी का वचन देना चाहता हूँ। In these days, और ये दिनों में you will see people falling. और आप देखोगे लोग गिर रहे हैं। Those who don't have the word with them, they are going to completely fall. They are going to be completely erased. और जिन लोगों के पास परमेश्वर का वचन नहीं है वो पूरी तरह से जो है वो नष्ट होने वाले हैं। Because when you don't have the word of God with you, क्योंकि जब आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं रहता है you cannot hold on to the promises of God. आप परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को नहीं आप रख सकते हो। So in these days, ये दिनों में forget about signs, wonders and miracle. Everything will happen. और चिन्ह चमत्कार ये सब जो हर एक चीज होगा। But लेकिन if you lose the word, you lose everything. अगर आप वचन को खो दोगे यानी कि आपने सब कुछ खो दिया। So this morning, the title of this message is Think About God. और इस सुबह आज का संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के बारे में सोचो। Come on, tell the person sitting next to you, brother, sister, think about God. और अपने बाजू वाले से जो भी आपके बाजू में बैठा हुआ है उनसे कहो भाई या बहन परमेश्वर के बारे में सोचो। बोलो बोलो, I know many of your lips are not opening this morning. और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों का जो मुंह है वो नहीं खुल रहा है इस सुबह। Tell your neighbor, बाजू वाले से कहेंगे think about God. परमेश्वर के बारे में सोचो। Amen. आमेन। Whole life, पूरा जीवन from the birth till now, और जन्म से लेके अब तक even till death, और
और मरने तक भी we are busy thinking about ourselves. और हम सिर्फ व्यस्त हैं हमारे खुद के बारे में सोचने के We लिए। are busy thinking about our family, our friends, our job, our relationship, our finances. और हम बहुत ही व्यस्त रहते हैं हमारे परिवार के बारे में सोचने के लिए, हमारे दोस्तों के बारे में, हमारे रिश्तों के बारे में, हमारे परिवार सब के बारे में हम व्यस्त हो जाते हैं सोचने के लिए। But how many of us we actually think of God? लेकिन हम में से कितने लोग सच में परमेश्वर के बारे में सोचते हैं? How many of us, I want to tell you, dare to please God? और हम में से कितने लोग, मैं कहना चाहता हूँ कि ताकत रखो, आप परमेश्वर को खुश रखो। You know, we played truth and dare. और हम ऐसे खेलते हैं सच्चाई और ऐसे डेयरिंग का If you want a dare, I dare you to please God and not people. और जब हम ऐसे खेलते हैं तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप डेयर रखिए कि आप लोगों को नहीं परमेश्वर को खुश रखिए। Amen? आमीन। What you feed on, जो भी आप खाओगे, you will become like that. आप वैसे ही बनोगे। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? Whatever you eat, जो भी आप खाओगे, whatever goes inside, जो भी आपके अंदर जाएगा, whatever goes inside your spirit, और जो भी आपकी आत्मा के अंदर जाएगा, your spirit will develop like that. और आपका आत्मा वैसे ही बनेगा। Why many of us have weak spirit? और हम में से बहुत सारे लोगों की आत्मा इतनी कमजोर क्यों है? Why many of us give up on life? और हम में से बहुत सारे लोग जीवन पर हार मान लेते हैं Because you are not feeding on the word. क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को खा नहीं रहे हो। You are feeding on anxiety. और आप ऐसे बहुत सारे ऐसे एंजाइटी के ऊपर You are feeding सोच on रहे हैं, stress. You are feeding on problem. और अपनी समस्याओं पर, अपनी चिंताओं पर अपना मन लगा रहे You are हैं, feeding on self-sympathy. और खुद को ऐसे संपत्ति पाने में आप कर रहे हो। But you are not feeding on the word. But you are not feeding on the word. लेकिन आप परमेश्वर के वचन पर नहीं आप रुक रहे हो। When you feed on the word, जब आप वचन पर ऐसे रुकते हो, your spirit develops. आपकी आत्मा जो है वो बन जाती Your है, character develops. आपका चरित्र बनता है, Healing comes. चंगाई आती है। Everything. That's why the Bible said He sent forth the word of healing. और इसलिए बाइबल कहता है कि उन्होंने अपने वचन को भेजा चंगाई करने के लिए। Every miracle that we see, हर एक चमत्कार जो हम देखते हैं, every healing that happens, हर एक चंगाई जो हम देखते हैं, is not because we are somebody great. It is because the word of God carries that power. और वो इसलिए नहीं कि हम कुछ महान हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो सामर्थ को लिए चलता है। And because that word has power, और क्योंकि वो वचन के अंदर सामर्थ है, it works in us. वो हमारे अंदर कार्य करता है। Hallelujah. So let us turn to Matthew chapter 1. और हम जाएंगे मत्ती के किताब में पहला अध्याय, We are going to read from verse 18 और onwards. हम 18 वचन से हम पढ़ेंगे। Okay, Matthew chapter 1 verse 18. और मत्ती 1:18, And the title is Think of God. और आज का संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के बारे में सोचो। Yes. यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ हाँ. कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। Yes. Now how Jesus was born. अब यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? The Bible says now the birth of Jesus was as follows. और बाइबल कहता है कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with a child of the Holy Spirit. कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। हाँ, क्या हुआ? मंगनी हुआ. Tell your neighbor they were engaged. और बाजू वाले से कहेंगे कि मंगनी हुआ था। Yes, they were engaged. उनका मंगनी हुआ था। Now in those days, और उन दिनों में, you know, and even now, अभी के समय में भी, you know, most of us we follow tradition that, you know, before the girl or a guy is not married, they cannot come together. They cannot be in a physical और relationship. हम ऐसे रीति रिवाज पे चलते हैं, जब तक ऐसे लड़का लड़की की शादी नहीं होती तो उससे पहले मिल भी नहीं सकते हैं। But आजकल सब modern है, everything happens before marriage. There is nothing left to do after marriage. लेकिन आजकल का समय बहुत ही आगे है। आजकल के समय में शादी से पहले ही सब कुछ हो जाता है। Pastor, first I will know that person, and when I know that person, compatible check, everything should be checked, and then I will get married. और पासवान पहले मैं उस व्यक्ति को जानूंगा और जब एकदम हमारा सब चीज जो है वो जुड़ जाएगा जिससे फिर मैं अगला कदम लूंगा। First I will check how fair and handsome he is. पहले मैं देखूंगा कितना गोरा और कितना सुंदर है वो, How much bank balance he has. और उसके पास कितना बैंक बैलेंस है, How he looks.
वो कैसे दिखता है, how he talks, वो कैसे बातचीत करता है, then we will see our physical compatibility, और फिर हमारे शरीर रीति से जितना हम जुड़ सकते हैं वो देखेंगे, whether he is strong or no. और या तो वो अच्छा बलवंत है या नहीं। Then after few years of dating, और कुछ साल ऐसे डेट करने के बाद when we know each other, हम एक दूसरे को जानेंगे, physically when we know each other, और शारीरिक रीति में जब एक दूसरे को जानेंगे, then I will plan to marry. और फिर मैं ऐसे सोचूंगा शादी करने के But लिए। in those days, लेकिन उन दिनों में, and still I believe these are the days, और अभी भी ये दिन में विश्वास करता हूँ, I want to tell you, मैं कहना चाहता हूँ, there should be only one compatibility. और सिर्फ एक ही ऐसा मेल मिलाप होना चाहिए। The Holy Spirit should be compatible in both of the lives. और पवित्र आत्मा जो है वो दोनों के जीवन में समान होना चाहिए। Come on, husband, wife, how many of you believe? और पति पत्नी कितने लोग विश्वास करते हैं? Finance कम रहेगा चलेगा, you are fat or thin चलेगा, but if the Holy Spirit is not there, बिल्कुल नहीं चलेगा। और अगर आपके जीवन में पैसे हैं या नहीं वो भी चलेगा, पतले हो या मोटे हो वो भी चलेगा, लेकिन अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो वो नहीं चलेगा। If God is not the base, अगर परमेश्वर ही आपका नींव नहीं है, you will never show your face. कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाओगे आप। Hallelujah. हालेलुया। So in those days, और उन दिनों में the Holy Spirit was compatible. और पवित्र आत्मा वहाँ पर ऐसे मौजूद था। Joseph, he only had an engagement with Mary. और यूसुफ की सिर्फ मंगनी हुई थी मरियम के साथ। Yes, and before they came together, she was found with a child of the Holy Spirit. तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही हाँ। वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। Before they could come together as a husband and wife. और पति पत्नी जैसे एक साथ आते हैं, उनके आने से पहले ही, Before they could physically come together, और शारीरिक रूप में आने से पहले ही Mary was already conceived not by any other man but through the Spirit of God. और मरियम जो पहले से ही गर्भवती हुई थी, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा। Listen to this, it's coming from heaven. और ये मेरी बात को ध्यान से सुनो, स्वर्ग से आ रहा है। Download this into your mind, make notes, write it because it's the Rhema word of God. और ये अपने आत्मा में उसे डाउनलोड कर लीजिए, आपको लिखना है तो लिख लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का रहमा शब्द है ये। What God is saying this morning, परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं इस सुबह? it's not only about the physical relationship. और वो ऐसा ही नहीं कि जो शारीरिक रीति में जो रिश्ता बनता है, God is saying before the physical, और परमेश्वर कह रहा है कि शारीरिक रूप में एक सत आने से पहले, before anything in the physical, और कुछ चीज, हर एक चीज जो शरीर में होता है उससे होने से पहले, it has to be spiritual. और वो आत्मा में होना बहुत जरूरी है। Amen. आमीन। Before we can receive anything physically, और अगर हम शरीर रीति में कुछ पा सकते हैं ग्रहण करने से पहले, it has to be received in the spirit. तो आत्मा में ग्रहण करना बहुत जरूरी है। Amen. Amen. Before you can receive the blessings of God physically, और शारीरिक रीति में परमेश्वर की आशीषों को पाने से पहले, you have to receive it in the spirit. और आपको आत्मा में उसे ग्रहण करना है। What is faith? और विश्वास क्या है? Faith is a spirit. और विश्वास एक आत्मा है। Faith is a spirit. विश्वास एक आत्मा है। What is discouragement? और निराशपना का मतलब क्या है? Discouragement is a spirit. वो भी एक आत्मा है। Whatever you want physical, first it has to be received in the spirit. और अगर शारीरिक रूप में अगर आपको कोई चीज चाहिए तो पहले उसे आत्मिक जीवन में आप ग्रहण करना सीखो। Amen. आमीन। Before even they came together physically, और शारीरिक रीति में दोनों एक दूसरे आने से पहले ही something was born of the spirit. और वहाँ पर आत्मा से कुछ जन्मा था। Hallelujah. Hallelujah. Before anything can come to us physically, और शारीरिक में से अगर कुछ चीज आती है हमारे पास, it has to be born in the spirit. और वो पहले आत्मा में जन्मा होना जरूरी It है। has to be activated in the spirit. और वो आत्मा में जारी होना बहुत, जागृत होना बहुत जरूरी है। Because the things of the spirit are permanent. क्योंकि आत्मा में दी हुई चीज वो हमेशा के लिए है। Amen. Amen. Physical thing. और शारीरिक चीजें, When you die, everything goes off. Nobody takes anything with them. और जब कोई मर जाता है कोई भी अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाता है। But when we die, लेकिन जब हम मरते हैं, our spirits are lifted up. हमारी आत्माओं को उठाया जाता Our है। body doesn't go, the spirit goes. हमारा शरीर नहीं लेकिन हमारा आत्मा जाता है। So before anything could happen here physically, God worked spiritually. और शरीर रीति में कुछ होने से पहले परमेश्वर ने वहाँ पर आत्मिक जीवन में कार्य किया। She was found with the child of the Holy Spirit. और वहाँ पर वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। See, they were engaged. देखो उनकी मंगनी हुई थी, They didn't come together, वो एक साथ नहीं आए थे, but she was pregnant
with the child of the Holy Spirit. लेकिन वो गर्भवती पाई गई पवित्र आत्मा के द्वारा। When you are pregnant, और जब आप गर्भवती होते हो, I'm not saying physical pregnancy. और मैं शारीरिक गर्भवती यानी कि शारीरिक चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ। We have to give birth, be man or woman. We all have to give birth to something into our life. और चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष, हर एक को जो है हमारे जीवन में किसी न किसी को जन्म देना है। You and I have to be pregnant with the word of God, with the Spirit of God. और आप और हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा गर्भवती होना है। Amen. आमेन। Forget about any other thing. You know, when you have pregnancy means something dwelling inside you. और भूल जाओ बाकी सारी चीजें। गर्भवती होने का मतलब है कुछ तो आपके अंदर है। You are giving birth to something. आप किसी चीज को जन्म दे रहे हो। In your life, आपके जीवन में something is happening. कुछ तो हो रहा है। But the plan of God is लेकिन परमेश्वर की योजना ये है। you have to be pregnant with the word and the Spirit of God. और आपको परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आत्मा से गर्भवती होना है। Hallelujah. हालेलुया। Yes. Verse 19. उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था हाँ। और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। Joseph was a righteous man. और यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था। Tell your neighbor, बाजू वाले से कहेंगे, brother, sister, भाई या बहन, do you know क्या आपको पता है Joseph was a righteous और man? यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था। Come on, tell your neighbor, बाजू वाले से कहेंगे, Joseph यूसुफ was a righteous एक man. धर्मी व्यक्ति था। Yes. The Bible says then Joseph, her husband, being a just man, और उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था, dharmi tha, means whatever is right he will do. उसका मतलब ये है जो भी सही है वो करेगा। हाँ। और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। और क्या नहीं करना चाहता था? बदनाम नहीं करना चाहता था। He didn't want to spoil Mary's life. और मरियम का जीवन उसे नष्ट नहीं करना था। Many people today, बहुत सारे लोग आज they themselves are spoiling their lives. और वो खुद ही अपने आप का जीवन को नष्ट करते हैं। How we can spoil our own life? और हमारे खुद के जीवन को हम कैसे नष्ट कर सकते When हैं? you move away from the call of God, जब हम परमेश्वर की बुलावट से दूर चले जाते when हैं, you move away from His word, उसके वचन से जब हम दूर चले जाते हैं, when you move away from His presence, जब उसकी महान उपस्थिति से दूर चले जाते हैं, this is the time ये समय है that we fall. कि हम गिरे। This is the time ये समय है that we spoil our name. कि हम हमारे नाम को बदनाम करते हैं। Today, character is most important thing. और आज चरित्र जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है। You know, you can fool, many people many times, और आप बहुत सारे लोगों को मूर्ख बना सकते हो, but you cannot fool all the people all the time. लेकिन हर समय हर लोगों को आप मूर्ख नहीं बना सकते। And forget about that, you cannot fool God. और वो सब चीज छोड़ दो, लेकिन परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। Why today the name is spoiled? और क्यों आज नाम खराब है? So many things. इतनी सारी चीजें। Why a child of God is not honored? और क्यों परमेश्वर का जो बच्चा है या संतान है वो उसको आदर क्यों नहीं मिलता है? Because of lies, झूठ के कारण, because of anger, गुस्से के because कारण, of self, और जो खुद का जो मैं होता है उसके कारण, because of ego. और अपने सारे ईगो की वजह से We don't bear the fruit of the Spirit. और हम आत्मा के फल को नहीं उत्पन्न करते। And that is why our name is spoiled. और इसीलिए हमारा नाम खराब है। Many people say, Pastor, उसने मेरा नाम खराब किया. No, you are responsible how you behave and how you walk with God. और कोई कहता है कि पास्टर उसने मेरा नाम खराब किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने नाम के लिए खुद के जिम्मेदार हो कि आपने कैसे बर्ताव किया। कोई भी किसी का नाम ना बड़ा कर सकता है ना गिरा सकता है. Only God can lift up your name and we can put our name down. और सिर्फ परमेश्वर ही आपके नाम को ऊंचा कर सकता है और हम जो है हमारे नाम को सिर्फ नीचे गिराते हैं। Amen. Joseph was a just man. और यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था। But लेकिन he could have reacted in any other way. और उसका जो ऐसा बर्ताव तो किसी भी तरह हो सकता था। He could have made a big issue. He could have spoiled Mary's name. Nobody would have married Mary. और उसने वहां पर मरियम का नाम खराब किया होता या किसी और तरीके से उसे बदनाम किया होता और कोई शादी भी नहीं करता मरियम से। Yes or no? हाँ या ना? Many people, बहुत सारे लोग they are expert in spoiling name. वो बहुत ही ऐसे अच्छे रहते हैं दूसरों के नाम खराब Oh, करने he's like that, she's like that. अरे वो
तो वैसा है, वो तो वैसी है। Oh, like that. अरे वो वैसा है। Have you seen yourself in the mirror? How are you? क्या आपने खुद को, अपने आप को ऐसे शीशे के आगे देखा है कि आप कैसे हो? Have you asked the Lord, Lord, show me the mirror. Let me see who I am before I see who others are. और क्या आपने कहीं परमेश्वर से कहा है कि परमेश्वर मुझे वो आईना जो है वो मेरे सामने दिखा कि दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से अच्छा मैं कैसा हूँ मुझे बता। Lord, show me that mirror and let me see the filth, the ego, the anger, the stupidity that is inside me. और परमेश्वर वो जो आईना है वो मुझे दिखा, और जो गुस्सा, जो ईगो, हर एक गंदी चीज जो मेरे अंदर भरी हुई है मुझे दिखा। Whatever is not from you, show me, Holy Spirit. Show me with the mirror so that I can change. और जो भी आपकी ओर से नहीं, पवित्र आत्मा मुझे दिखा ताकि मैं बदल पाऊँ। Hallelujah. हालेलुया। Something is happening this morning. कुछ तो हो रहा है इस सुबह। I believe the Lord is speaking. विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर सभी से बातें कर रहे हैं। Many of sitting like that. ये मेरे से बात नहीं कर रहा है. This is not for me. और बहुत सारे लोग ऐसे आराम से बैठे और कहते हैं कि यार ये मुझसे बात नहीं हो रहा है, ये मेरे लिए नहीं है। Sunday is a good day to come. और इतवार बहुत ही अच्छा दिन है आने के लिए। चकाचक नहा धो के, you come in the morning. और सुबह अच्छे से नहा धो के आप आते हो। While going, you have Uncle Jalil on the street. और जाने के वक्त आपके पास अंकल जलील होता है। And you go home and rest and you say, "Hey, आज का ना थोड़ा ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था. चलो, let me listen to something else." अरे आप घर जाके आराम करते हो और कहते हो, अरे आज का जो ये जो संदेश था ऐसा नहीं था, वैसा नहीं, चलो मैं किसी और को सुनता हूँ। ब्रदर सिस्टर, वचन समझ में नहीं आता है, और YouTube पे लगाते उसका बराबर समझ में आता है। प्रॉब्लम इज द वर्ड is coming and cutting you. अरे भाई और बहन, मुझे तो वचन समझ में ही नहीं आता है क्या प्रचार हो, लेकिन वो YouTube वाला जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन समस्या ये है कि वचन आपको आके काटता है। The guy on the YouTube does not know your life. और जो YouTube पे जो व्यक्ति है वो आपके जीवन को नहीं जानता है। That person has nothing to do with your soul. और वो व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है आपकी प्राण से। Hallelujah. हालेलुया। Come on church, raise up your voice this morning. अपनी आवाजों को उठाएंगे सुबह। Somebody can speak in your life when they know your life. और कोई तो आपके जीवन में बोल सकता है जब वो आपके जीवन को जानता हो। Receiving the word, I receive, but nothing happens. और आप कहते हो कि मैं वचन को तो ग्रहण करता हूँ, मैं वचन को ग्रहण करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता है। When you watch YouTube, when you watch Facebook, when you watch on platform, I receive, but you're not receiving anything because your spirit is empty. और आप जब YouTube और Facebook या दूसरे सोशल मीडिया पर देखते हो, आप कहते हो कि मैं वचन को ग्रहण करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, वचन ग्रहण नहीं कर रहे हो। If you really receive, अगर आप सच में ग्रहण करते हो, there has to be some change. और वहाँ पर कुछ बदलावट होना जरूरी है। Hallelujah. Hallelujah. You see, wherever Jesus went, when people received the word, they were saved, they were immediately changed. और आप देखोगे जहाँ पर भी यीशु मसीह गए वचन को लेकर, वहाँ पे लोगों ने वचन को ग्रहण किया और तुरंत ही वो बदल गए। Yes or no? है ना? Families and family salvation. और परिवार से परिवार तक का उद्धार हुआ। Why? क्यों? They received the word with gladness. क्योंकि एक आनंदित हृदय के साथ उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। They didn't receive the word with madness. और उन्होंने पागलपन के साथ परमेश्वर के वचन को नहीं ग्रहण किया। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? This is not for me. अरे ये मेरे लिए नहीं है। This is not for me. ये मेरे लिए नहीं है। I will get up from the chair. अरे मैं कुर्सी से उठ जाऊंगा। I will show now. मैं अभी दिखाऊंगा He उसे। is talking too much from the और वो pulpit. pulpit से बहुत ज्यादा बात कर रहा है। Listen, church. सुनो कलीसिया, It's the time to shut all this nonsense and get serious with the word. और ये समय है कि सब ये मूर्खता वाली चीजों को आप बंद करिए और गंभीर हो जाइए परमेश्वर के वचन के A साथ। time is coming. एक समय आएगा, People who don't have the word in their life, they will be destroyed completely. और एक समय आएगा जिन लोगों के पास परमेश्वर का वचन उनके जीवन में नहीं, पूर्ण रीति से वो नष्ट हो जाएंगे। I'm talking about believers. मैं विश्वासियों के बारे में बात कर रहा हूँ। If you don't hook up in the word, अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ गंभीर रीति से नहीं जुड़ोगे, if you are not one with the word, अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ एक साथ नहीं रहोगे, you will see in few days everything will dip. और कुछ दिनों में आप देखोगे हर एक चीज से डूब जाएगा। And then और फिर you will say, Lord, what is wrong? और आप कहोगे परमेश्वर क्या गलती किया मैंने, You are not one with the word. क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के साथ एक नहीं हो। Yes, verse 19.
उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था हाँ, और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, yes. उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। What came in his mind? उसके दिमाग में क्या आया? Okay, the child is there. ठीक है, वहाँ पर तो बच्चा है She might be unfaithful, और शायद वो अविश्वास योग्य होगी, but I cannot come down to her level. लेकिन मैं उसके स्तर पर नहीं आ सकता हूँ। My level is God's level. और मेरा स्तर जो है वो परमेश्वर का स्तर है। If she has put me to shame, I cannot put her to shame. और अगर उसने मुझे शर्म में डाला है तो मैं उसे शर्म में नहीं डालूंगा। So what can I do? मैं क्या कर सकता हूँ? I will secretly let her go out of my life. और मैं गुप्त रीति से चुपचाप से उसको मेरे जीवन से बाहर निकाल दूंगा। That was his thinking. वो उसकी सोच थी। He's thinking about himself, वो खुद के बारे में सोच रहा है, thinking about Mary. मरियम के बारे में सोच रहा He's है, thinking about people. लोगों के बारे में सोच रहा What है। will people say? अरे लोग क्या कहेंगे? What will my parents अरे say? मेरे माता पिता क्या कहेंगे? They will curse this Mary. और वो मरियम को श्राप दे देंगे। They will, they will tell her so many things. वो इतनी सारी चीजों को बोलेंगे। So he thought, तो उसने सोचा it's better I keep quiet. अच्छा है कि मैं मेरा मुंह बंद रखूं ये जहर भी पी लेता हूँ चुपचाप. Let her go. और उसे मैं जाने देता हूँ। Yes. जब वह इन बातों के सोच ही में था, जब वो इन बातों के सोच ही में था, he was just thinking these things. और वह सब चीजें सोच ही रहा था, हाँ. तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा। Thank God for God's dreams and God's angel. और परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत और परमेश्वर के सपने जो आते हैं। Thank God for God has kept such people to again and come in, give the word, warn and put us into the right direction. परमेश्वर का धन्यवाद करते परमेश्वर ने कुछ रखा है कि बार बार आके परमेश्वर के वचन को देते हैं। Thank God. परमेश्वर का धन्यवाद करें। Thank God that He sent His angel to Joseph. और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि वहाँ परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को यूसुफ के पास भेजा। Because if someone didn't intervene in Joseph's life, और अगर वहाँ पर कोई नहीं होता यूसुफ के जीवन में बोलने के लिए। हमको अच्छा लगता है ना जब हमें कोई कुछ नहीं बोलता है, yes or no? हाँ या ना? Oh, this pastor is very खड़ूस. अरे पासवान बहुत ही खड़ूस है। Brother, you don't know him, you don't know him. अरे भाई आप नहीं जानते और नहीं जानते You know, उसे। he talks like that, then he hurts, then full my टुकड़ा comes out. और वो ऐसे बात करता है, वो बहुत ही दुख पहुंचाता है, फिर मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। He, a pastor cannot be like that. पासवान नहीं हो सकता है वैसे। No, he has to love, care. अरे उसे तो प्रेम करना है, उसे देख-रेख करना है सबका। Listen, सुनो, you're only seeing the one part. आप सिर्फ एक भाग को देखते हो। In that correction, in that guidance also there is love, and that's why it is there. और अगर वो आपकी अगुवाई करता है या अगर आपको सही करता है, उसमें भी उसका प्रेम छिपा हुआ है, इसीलिए वो वहाँ पर कहता है। But unfortunately, the sad part today is लेकिन दुख की बात ये है आजकल के समय में, people don't take it, they don't like it. और जो लोग हैं वो उसे ले नहीं सकते, उसे पसंद नहीं करते हैं। No, my life, personal life. अरे नहीं, मेरा जीवन व्यक्तिगत जीवन है। ये मेरी कार है, ये मैं हूँ और यहाँ पर पारी हो रही है. That's how they behave. और उसी तरह वो बर्ताव करते हैं। Me, myself, my family, my. और मेरा परिवार और सिर्फ मैं। This is not how the kingdom of God works. और ऐसा परमेश्वर का राज्य कार्य नहीं करता If you है। cannot take it, अगर उसे ले नहीं सकते हो, you will never have it. आपके पास कभी होगा भी नहीं। You need to take the word of God. और परमेश्वर के वचन को अपनाना बहुत जरूरी है। When he had his plans, जब उसकी खुद के दिमाग में सब सोच विचार चल रहे थे, God had other plans. परमेश्वर की कुछ और योजना थी। Amen. आमेन। अपना लिमिटेड दिमाग, बटाटा जैसा दिमाग है, we have some plan. और हमारा छोटा यानी कि बहुत ऐसे बटाटा दिमाग जो है, कुछ तो छोटे से योजना होती है। But God is bigger than our batata plan. लेकिन परमेश्वर जो है वो बहुत ही बड़ा और महान है हमारे बटाटा दिमाग से ज्यादा। Amen. आमेन। So Joseph was thinking something and God was thinking something else. और यूसुफ वहाँ पर कुछ और सोच रहा था और परमेश्वर वहाँ पर कुछ और सोच रहे थे। Yes. जब वह इन बातों की सोच ही में था, हाँ. तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है
वह पवित्र आत्मा की ओर से है। What the angel of the Lord said? और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने क्या कहा? Joseph, यूसुफ, you are thinking about your own self. और तू अपने खुद के बारे में ही सोच रहा है। You are thinking about the people. तू लोगों के बारे में सोच रहा है। You are thinking about how should I save my name. और तू सोच रहा है कि तेरे नाम को कैसे बचाएगा। But लेकिन do not be afraid. डर मत। The angel said, और स्वर्गदूत ने कहा, first thing he said, do not be afraid. और पहला ही चीज उसने कहा कि तुम डरो मत। When we make our plans, we should be afraid. और जब हमारी योजना हम बनाते हैं तो हमें डरना चाहिए। God's plan does not have anything to fear. और परमेश्वर की योजना में कोई डर नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। In God's plan, परमेश्वर की योजना में, in God's purpose, परमेश्वर के उद्देश्य में it does not come with fear. वो डर से नहीं आता है। It comes with comfort. It comes with faith. विश्वास के साथ आता है, सुकून के साथ आता है। Yes. So the angel said, first of all, Joseph, do not fear. और पहले ही स्वर्गदूत ने कहा कि यूसुफ डर मत, वह पुत्र जनेगी। नहीं वापस। जब वह इन बातों की सोच ही में था, हाँ। तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हाँ। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। मत डर। Whatever is happening, it is the will of God. क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की इच्छा के साथ हो रहा है। You are thinking of people, but God has something else. और तू लोगों के बारे में सोच रहा है, लेकिन परमेश्वर की सोच कुछ अलग है। You are not feeling good, but God has better plan. और तुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन परमेश्वर की कुछ अच्छी योजना है। Don't worry, you are not going to go in shame. और चिंता मत कर, तू शर्म में नहीं जाएगा। Many people, Pastor, I'm going through shame. और बहुत सारे लोग कहते हैं, पासवान मैं तो बहुत शर्म से जा रहा हूँ। You are going through shame because you are depending on your own plan. और आप शर्म में जाते हो क्योंकि खुद की योजनाओं पर निर्भर करते You हैं। are not listening to God. आप परमेश्वर की नहीं सुन रहे हैं। Your heart is become hard. Your heart is not of repentance. और आपका हृदय जो है वो बहुत ही कड़क हो चुका है, पश्चाताप का हृदय नहीं है। इतना कड़क हो गया है ना, उसको फोड़ने के लिए भी मेरा सर भी कम है। But लेकिन when God's plan is with you, जब परमेश्वर की योजना आपके साथ है, you will never go through shame. आप कभी भी शर्म से नहीं जाओगे। You will feel like you are going down, और आपको ऐसे महसूस होगा कि आप नीचे जा रहे हो, but you will never touch the ground. लेकिन आप कभी भी जमीन को नहीं छूओगे। Joseph was thinking about the world, about the people. और यूसुफ वहाँ पर जगत के बारे में, लोगों के बारे में वहाँ पर सोच रहा था। ये क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगी, इससे अच्छा मैं छोड़ देता हूँ। But God said, do not be afraid, get her. सोचा कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, इसलिए मैं उसे छोड़ देता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि डर मत, उसे ले आ। Do not be afraid. डर मत। First word God gave him, comforted, encouraged him. और पहला शब्द परमेश्वर ने उस यूसुफ को दिया, वो है डर मत, उसे आगे बढ़ाया। Number 2, दूसरा, God told his purpose, he revealed his plan. He said what is born is not of the man but is of the Holy Spirit. और परमेश्वर ने दूसरा क्या कहा, परमेश्वर ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा जो भी मनुष्य से जन्मा है वो नहीं, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है। When you are not fearful, जब भी आप भय नहीं रखते हो, when you walk according to God's ways, जब आप परमेश्वर के तरीके मार्गों से चलते हो, when you are not afraid of anybody, जब आप किसी से डरते नहीं हो, when God will comfort you, जब परमेश्वर आपको ऐसे एक शांति की जगह पर लाएंगे, and he will reveal his plan. और वो अपनी योजनाओं को प्रकट करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Many people ask, what is the plan of God in my life? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि परमेश्वर की क्या योजना है मेरे जीवन में। I will answer you today in Jesus' name. मैं आपको उत्तर दूंगा यीशु मसीह के महान नाम से। One plan of God on your life is और एक योजना परमेश्वर की जो आपके जीवन में है, to come out of your own plan. और अपने खुद की योजनाओं से बाहर निकल के आओ। That is the plan of God. वो है परमेश्वर की योजना। Tell your neighbor, बाजू वाले से कहेंगे, today God spoke to you. और आज परमेश्वर ने आपसे बातें की। बोलो बोलो, today आज God spoke to you. परमेश्वर ने आपसे बातें की। Now today और अभी आज we know God's plan. परमेश्वर की योजना मालूम है। Yes, church, what is God's plan? कलीसिया, परमेश्वर की योजना क्या है? We should not make any plan, that is God's plan. और हम कोई योजना नहीं बनाए, वो परमेश्वर की योजना है। Hallelujah. हालेलुया।
not to do our plan, that is God's plan. और वो हम हमारी योजना नहीं बनाए, वो परमेश्वर की योजना है। When Joseph was said, when the angel said, do not be afraid. और जब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा कि डर मत, The second time, God revealed the plan. He said, the angel said, what is born is of the Holy Spirit. और दूसरा ही चीज, जब परमेश्वर ने अपनी योजना को प्रकट किया वहां पर कहकर कि जो जन्म लेने वाला है वो पवित्र आत्मा से है। Hallelujah. हालेलुया। Yes. क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हाँ. वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हाँ. क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। Amen. आमेन। God not only spoke about the child, परमेश्वर ने सिर्फ बच्चे के बारे में ही नहीं but there was कहा, also a prophecy. लेकिन वहाँ पर एक भविष्यवाणी भी हुई। When God reveals a plan, जब परमेश्वर कुछ योजनाओं को प्रकट करते हैं, it has to be prophetic. भविष्यवाणी के द्वारा होनी God will चाहिए। reveal your future. परमेश्वर के भविष्य को बताएगा। God will intervene in your present circumstances. परमेश्वर आपके अभी के परिस्थिति में भी आपके साथ बोलेगा। And when you say, yes, Lord, I accept your plan, I will not walk in my plan, then God will reveal what He's going to do in future. और जब आप कहते हो कि हाँ परमेश्वर, मैं अभी के सारी योजनाओं को मैं ग्रहण करता हूँ और अपने खुद की समझ से नहीं चलूंगा, तो परमेश्वर आगे का चीजें भी आपको प्रकट करेंगे। Amen. आमेन। The first thing is, पहला ही चीज है, Lord, मेरा प्लान बकवास है, let your plan come to pass. वो मेरी योजना नहीं लेकिन आपकी योजना आ जाए मेरे जीवन में। I am thinking of people, I am thinking of pleasing this person, this and that. No, Lord, I only want to please one person, that is Jesus, that's all, finished. परमेश्वर, मैं सोच रहा हूँ कि उन लोगों को मैं खुश करूँ, उन लोगों को मैं खुश करूँ, ये लोगों को खुश करूँ, लेकिन मेरी एक ही योजना है कि मैं परमेश्वर को खुश करूँ। When I make God happy, when I walk in the word of God, that's all. जब मैं परमेश्वर को खुश रखता हूँ, जब परमेश्वर के वचन में चलता हूँ, बस वही काफी है मेरे लिए। What is God's heart? What makes God happy? और परमेश्वर का दिल क्या है, परमेश्वर को क्या चीज खुश करता है? When God sees His son and daughter walking according to the word in obedience, depending on Him, that makes God happy. और जब परमेश्वर देखते कि उसका बेटा या बेटी जो है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को लेकर चलते, परमेश्वर के वचन को लेकर चलते, वो परमेश्वर को आनंद करता है। Hallelujah. हालेलुया। This is what God, makes God happy. और यही चीज परमेश्वर को खुश रखता है। Yes, verse 22. यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था हाँ। वह पूरा हो। This happened because God already spoke. और ये हुआ क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही कहा था। God had to fulfill something, परमेश्वर को कुछ चीज ऐसे पूरा करना था and it went through Joseph. और वो यूसुफ के द्वारा गया। Today I want to prophesy. और आज भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। You are that Joseph. और आज आप वो यूसुफ हो। God has spoken already upon your life. परमेश्वर ने पहले से ही आपके जीवन में बोला He है wants to do something, और वो कुछ करना चाहता है, but it will only happen through you. लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा होगा। Amen. Amen. If you don't allow God, और अगर आप परमेश्वर को मौका नहीं दोगे, it cannot happen. नहीं होगा। If you don't allow God to take charge, control of everything, it will never और happen. अगर आप परमेश्वर को पूरी तरह से नियंत्रण नहीं दोगे हर एक चीज करने का, तो वो नहीं होगा। God had to fulfill something, and something has to happen for that. और परमेश्वर को कुछ तो चीज पूरा करना था, इसीलिए कुछ तो वहाँ पर होना जरूरी When था। God wants to fulfill something in your life, जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ पूरा करना चाहते हैं, something will happen. कुछ तो होगा। Maybe your life will shake. शायद आपका जीवन बदल जाएगा। Maybe you will go through a tremendous time of challenges. और शायद आप चुनौतियों के समय से गुजर जाओगे। But I want to tell you, लेकिन मैं कहना चाहता do हूँ, not be afraid. डरो मत। When God says do not be afraid, means nothing will happen. जब परमेश्वर कहते हैं कि डरो मत, यानी कि कुछ तो हो रहा है। Hallelujah. हालेलुया। इंसानों का नहीं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं और टाइम पे कोई नहीं है पीछे। When God says do not fear, He's saying I am with you. और जब परमेश्वर कहते हैं कि डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ, यानी कि वो आपके साथ है। Hallelujah. हालेलुया। God is with you this morning. इसलिए परमेश्वर आपके साथ है। And this is what the Lord says. यही चीज परमेश्वर कह रहे हैं। Do not fear, I am doing the work that I've planned in your life. और डरो मत, मैं वो हर कार्य को पूरा करूंगा जो मैंने आपके जीवन में योजना बनाया है। Amen. आमेन। Yes. वह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था
वह पूरा हो। हाँ, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। yes. तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपने पत्नी को अपने यहाँ ले आया। Hallelujah. हालेलुया। When God speaks to you, जब परमेश्वर आपसे कहते या बोलते हैं, everybody, there is nobody that is sitting and saying, God never spoke to me. और हर एक लोग, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कहेगा कि परमेश्वर ने मुझसे बातें नहीं की। God spoke to Joseph. परमेश्वर ने यूसुफ से बातें की। The verse says he got up from the sleep. और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो नींद से उठ गया। Hallelujah. हालेलुया। हम लोग पता नहीं कौन से नशे में हैं, that we are not getting up. और हम लोग पता नहीं कौन से नशे में कि हम उठते ही नहीं हैं। We are in our own wonderland. We are not getting up to the reality. और हम सच्चाई में नहीं जाग रहे हैं, लेकिन हमारे खुद के जगत में रहते हैं। Own wonderland, own news stories, own everything. Life has become like Netflix, new web series, one after another. और खुद के ही ऐसे में ऐसे व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन जीवन जो है वो नेटफ्लिक्स के समान एक के बाद वेब सीरीज आता है। Life is not Netflix. और जीवन नेटफ्लिक्स नहीं है। Life is reality. और जीवन सच्चा ही है। There will be troubles, there will be time of challenges, trials, tribulation, blessing, everything is there and it is real. और सताव आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, आशीषें भी आएंगे, हर एक चुनौतियां आएंगी, लेकिन वो एक आशीष बनेगा। But he woke up. लेकिन यूसुफ वहां पर जाग गया। Tell your neighbor, बाजू वाले से कहेंगे, it's time समय है to wake up. जागरूक होने का। हाँ, जागते रहो, बाजू वाले के भरोसे मत रहो। It's time to wake up. और समय कि हम जागते रहे। Pastor, I wake up every day. Nothing is happening. I'll tell you why. मैं तो हर रोज जागता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं कहूँगा क्यों। Joseph woke up from the sleep. और यूसुफ वहाँ पर नींद से उठा। Verse 24, mark it, highlight it, eat it every day. 24वां वचन आप उसे मार्क कर दीजिए, हर रोज उस वचन को खाओ। There's a prophetic word. It's an answer for many people. अरे भविष्यवाणी का शब्द है, बहुत सारे लोगों के लिए उत्तर। Yes, verse 24. तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु की दूत की आज्ञा के अनुसार। नींद से जाकर क्या किया? भेलपुरी खाया, पानी पूरी खाया, घुमा फिरा, थोड़ा इधर उधर, मस्त गया, लाइफ गया और बोला कि जय यीशु, जो होगा देखा जाएगा। He got up and he did what God told him to do. और यूसुफ वहां पर नींद में से उठा और उसने परमेश्वर की आज्ञा जो कहा गया था उसे कर दिया। Life is not easy. और जीवन आसान नहीं है। Life is not the bed of roses. और जो जीवन है वो ऐसे गुलाबों का बिस्तर नहीं है। Tell your neighbor, बाजू वाले से कहेंगे, life is not the bed of roses. और जीवन जो है वो ऐसे गुलाबों का भरा हुआ बिस्तर नहीं है। मस्त सोएगा, अच्छा स्मेल भी आएगा, सॉफ्ट भी होगा, सब टेंशन नहीं। नो, लाइफ इज लाइफ। और जीवन है। एंड टू लिव दिस लाइफ you need to have the word of God. और इस जीवन को जीने के लिए आपको परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। He didn't sleep. He got up. और वो वहां पर सोता नहीं रहा, लेकिन वो नींद से उठ गया। After he got up, और जब वो उठ गया, he was not diverted here and और there. उसका जो ध्यान वो यहाँ वहाँ नहीं भटका। He was not distracted here and और there. उसका ध्यान यहाँ वहाँ नहीं भटका। When God spoke to him, he got up and he was focused. और जब परमेश्वर ने उससे बातें की, जब वो जागा, तब वो पूरी तरह से ध्यान में उसने रखा। When he got up, he went and got back Mary. और जब वो उठा तो उसने जाकर मरियम को ले आया। Hallelujah. हालेलुया। He didn't sleep. वो सोता नहीं रहा। एक दिन हो जाएगा, सब अच्छा, परमेश्वर सब अच्छा करेगा। Nonsense. Get up. Do what the Lord has told you to and see the breakthroughs in your life. सब मूर्खता की बातें, लेकिन आप उठ जाओ, परमेश्वर ने जो कहा है वो करो और देखो विजय आशीर्वाद आपके जीवन में। And then what happened? When he did, और उसके बाद क्या हुआ? जब उसने किया, what God asked him to do. परमेश्वर ने क्या कहा उसे करने के लिए? Yes. 24. तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया। और उसने उसका नाम यीशु रखा। Hallelujah. हालेलुया। What God had a plan. और जो परमेश्वर की योजना थी,
He fulfilled it. और उसने पूरा किया। Pastor, I am like that. अरे पासवान मैं तो ऐसा हूँ, Nobody loves me. और मुझसे कोई प्रेम नहीं करता है, Nobody cares for me. और मुझे लिए कोई देखता भी नहीं है। अच्छा, then what is Jesus doing in your life? और फिर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं आपके जीवन में? You are saying nobody is doing anything, then what God is doing into your life? आप कहते हो कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर परमेश्वर क्या कर रहा है आपके जीवन में? अकेला लगता है पास्टर। अच्छा, you spend time with the word, God is with you, you will not feel alone. और आप परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताओ तो आप अकेले नहीं रहोगे, आपको अकेला महसूस नहीं होगा। I cannot bear it. मैं नहीं ले सकता हूँ उसे। We are not supposed to bear. और हम उसे लेना भी नहीं चाहिए हमें। Give it in the hands of God. परमेश्वर के हाथों में दे दो। Joseph had one thinking. He was thinking about people and other things. और यूसुफ की सिर्फ एक ही सोच थी, वो खुद के बारे में और सिर्फ लोगों के बारे में और दूसरी बातों में सोच रहा था। But God had another thinking. लेकिन परमेश्वर की सोच कुछ और थी। Church, I want to tell you this morning. कलीसिया में कहना चाहता हूँ इस सुबह। Think of God's plan, not your plan. परमेश्वर की योजनाओं के बारे में सोचो, आपकी योजनाओं के बारे में नहीं। Hallelujah. Hallelujah. What God does, what God gives, it's a process. और जो परमेश्वर देता है, जो परमेश्वर करता है, वो एक प्रोसेस होता है। No, I want to fly like Superman, boss. It's a process. God does everything in His time. अरे मुझे तो सुपरमैन से उड़ना है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर का एक तरीका होता है, परमेश्वर का एक समय होता है। No problem ना, थोड़ा है ना, तकलीफ होएगा। Get trained in the word. और कोई बात नहीं, अगर थोड़ा है, थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन में सीखना सीखो। You want to become like Humpty Dumpty sat on the wall, you will have a great fall. और आपको ऐसे हम्टी डम्टी दीवार पे चढ़कर गिर चुके थे वैसा बनना है तो गिर जाओगे। Listen to this. मेरी बात को सुनो। Get trained in the hands of God. परमेश्वर के हाथों में आप तैयार बनना सीखो। And it's time to stop sleeping. Get up, rise up, and do what God has called you to do, and do what God is telling you to do. और समय है कि आप ऐसे सोते मत रहो, लेकिन जागते रहो, और जो परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है, जिसके लिए आपको बुलाया गया है, वो करो। Don't sleep in the spirit, spiritual sleep. आत्मा सो गया, no. It's the time to wake up. और आत्मा में मत सो, आत्मा सो रहा है, नहीं, लेकिन समय है कि आप जागरूक रहो। And fulfill what God wants to do through us. और वो चीज को पूरा करो जो परमेश्वर हमारी ओर से करना चाहता है। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So this is the time that we sow it into the kingdom of God. और समय है कि हम परमेश्वर के राज्य में हम बोए। So I want you to rise up. मैं चाहता हूँ कि आप सब उठ खड़े हो जाएंगे। And then we are going to pray together. और हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। So let us pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Stretch your hands towards the offering. आइए हमारे हाथों को बढ़ाएंगे उस भेंट की। Father, in Jesus' name we thank you. और पिता यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं। We cover everything by your precious blood of और Jesus. सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम के नीचे ढकते हैं। Father God, we just bless your name. प्रभु आपके नाम को आशीषित करते हैं। We just thank you for everything. प्रभु हर एक चीज का धन्यवाद करते हैं। Lord, every provision, Lord, let it be flow in Jesus' name. प्रभु हर एक जरूरत जो है वो बहे यीशु मसीह के महान। Father, every spirit of disturbance, every spirit, Lord Father, be cursed, be taken out in the name of Jesus. प्रभु हर एक गड़बड़ी की आत्मा, हर एक जो रुकावट की आत्मा है, प्रभु उसे हम श्रापित करते हैं यीशु मसीह के महान। Father, you have spoken this morning. प्रभु आपने इस सुबह बातें की है। Think about the things of God. परमेश्वर की चीजों के बारे में सोचो। Yes, Lord, it's the time हाँ परमेश्वर समय to है think about your kingdom. और आपके राज्य के बारे में सोचने के We लिए। want to be like Joseph, who will get up and do what God had told him to do. हम यूसुफ के समान बनेंगे, प्रभु जो नींद से उठा और जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार उसने सब चीजों को Bless किया। each one that has come in this morning. प्रभु इस सुबह सभी लोगों को आशीषित कर जो With faith, they have come in, और विश्वास के साथ वो लोग आए हैं and in peace and in joy, they leave this place. और वो शांति और आनंद से लेकर परमेश्वर वो इस जगह को छोड़कर We जाएंगे। bless everyone in Jesus' name. और सभी को आशीषित करते हैं यीशु मसीह के महान नाम से। Thank you, Master. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name we और pray. यीशु मसीह के महान नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।